خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعظم کا کامیاب دورہ بیلاروس کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو پاکستان اور بیلاروس کے درمیان 5 معاہدوں اور مفاہمت کی 2 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ پاکستان سے 1.5 لاکھ سے زائد ہنرمند نوجوان کو بیلاروس بھیجنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ بہترین میزبانی پر بیلاروس کی قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس کا کامیاب دورہ۔ جب وہ وفد کے ہمراہ دارالحکومت مینسک پہنچے تو وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن نے ان کے ایئرپورٹ پر استقبال کیا۔ وزیر اعظم کے ایوان اعدادی آمد پر شاندار خیر مقدم کیا گیا، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ استقبالیہ میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے پرتپاک استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں اتفاق کیا کہ پاکستان سے ہنرمند نوجوان بیلاروس بھیجنے کے لیے لاہے عمل جلد ترتیب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ بیلاروس کے دوران دونوں ممالک کے درمیان کئی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں کے تبادلے ہوئے۔ اس دورے میں مسلم لیگ نون کے صدر سابق وزیر اعظم نواز شریف، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور وفاقی کابینہ کے ارکان وزیر اعظم کے ہمراہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مینسک کے قریب ہیوی مشینری اور گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری کا بھی دورہ کیا۔ وزیر اعظم کو فیکٹری میں تیار کی جانے والی مشینری سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا ہمیں فیکٹری مصنوعات پر بات کرنی ہوگی، اس کے 2 طرفہ فروغ کے لیے بھرپور کام کرنا ہوگا، ہمیں اعلیٰ کوالٹی کی مصنوعات درکار ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر نون لیگ میاں نواز شریف کامیاب دورہ بیلاروس کے بعد لندن پہنچ گئے۔ انہیں مینسک کے ہوائی اڈے سے بیلاروس کے وزیر اعظم الیگزینڈر تورچن اور وزیر خارجہ اور بیلاروس میں پاکستانی سفارت خانے کے افسران نے رخصت کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف لندن میں 3 روز قیام کے بعد وطن واپس روانہ ہوں گے، جبکہ نواز شریف 2 ہفتے سے زائد لندن میں قیام کریں گے۔ ایک اور اہم دورے سے متعلق آپ کو بتائیں، دورہ ترکیہ میں مریم نواز نے ترک خاتون اول سے ملاقات کی ہے۔ امین اردوان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خیر مقدم کیا۔ دونوں رہنماؤں کا ایک دوسرے کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ مریم نواز بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے انطالیہ میں موجود ہیں، جہاں وہ آج کانفرنس سے خطاب بھی کریں گی۔ کچھ مناظر اس کے دیکھے جا سکتے ہیں۔ دورہ ترکیہ میں مریم نواز نے ترک خاتون اول سے ملاقات کی ہے۔ امین اردوان نے وزیر اعلیٰ پنجاب کا خیر مقدم کیا۔ اور صدر مملکت آصف علی زرداری کی صحت بحال ہو گئی ہے، اسپتال سے چھٹی مل گئی ہے۔ ڈاکٹر عاصم حسین نے بتایا ہے کہ کرونا ٹیسٹ منفی آنے کے بعد صدر زرداری کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ان کو مزید فزیو تھراپی کا مشورہ دیا گیا ہے۔ صدر زرداری 10 دن سے زائد نجی اسپتال میں زیر علاج رہے۔ انہیں عید کی رات نواب شاہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا اختتام مندی پر ہوا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز انڈیکس میں 1335 پوائنٹ کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ 100 انڈیکس 1,14,853 پوائنٹ پر بند ہوا۔ مارکیٹ میں 31 ارب روپے مالیت کے 45 کروڑ حصص کے سودے ہوئے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ SIFC کی معاونت سے یورپی ممالک کو برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ برآمدات مجموعی طور پر 9.4% تک بڑھ چکی ہیں۔ مغربی یورپ میں یہ اضافی شرح 11.6% ہے اور شمالی یورپ میں 17.7% پر پہنچ چکی ہے۔ SIFC کا تعاون اور کوششیں۔ اقوام عالم کا پاکستانی صنعت پر اعتماد بحال ہو گیا۔ اٹلی، یونان اور اسپین سمیت دیگر یورپی ممالک کو برآمدات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستانی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی مانگ سے برآمدات میں مجموعی طور پر 9.4% کا نمایاں اضافہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کو برآمدات میں 11.6% اور شمالی یورپ کو برآمدات میں 17.7% کا اضافہ خوشائند قرار دیا جا رہا ہے۔ برآمدات میں اضافے کی بنیادی وجہ GSP پلس اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ٹیکسٹائل اور ملبوسات کی بڑھتی ہوئی مانگ ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کی جانب سے پاکستان کو ڈیوٹی فری رسائی دینے والے GSP پلس اسٹیٹس کی 2027 تک توسیع بھی کر دی گئی ہے۔ برآمدات کو ڈیوٹی ٹیکس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ SIFC کی کامیاب پالیسیوں سے صنعتوں کو سرمایہ کاری کی ترغیب مل رہی ہے۔ اقتصادی ترقی کا سفر جاری ہے۔
आपको बता दें कि रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। सवात, अटक, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट करें आपको इस हवाले से, शहर इक़्तिदार इस वक्त ज़लज़लों के झटकों की लपेट में है। गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आसपास का गिरदोनवा का इलाका, यहाँ पर भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इसका रीजन क्या है, इसकी शिद्दत कितनी है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस वक्त शदीद झटके महसूस किए गए हैं। और इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। मरी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके बताए जा रहे हैं जहाँ पर ज़लज़ला आया है, ज़मीन लरज़ उठी है। सवात, अटक, मर्दान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके साथ साथ मरी और गिरदोनवा से भी रिपोर्ट आ रही है कि वहाँ पर भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। इसकी शिद्दत कितनी है, इसका रीजन क्या है, इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत क्या बताई जा रही है, इसका रीजन कहाँ से है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि इस वक्त शदीद झटके महसूस किए गए हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अतराफ में ज़लज़ला महसूस किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा का मुख्तलिफ इलाका, यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर भी ज़लज़ला महसूस किया गया है। सवात है, अटक है, मर्दान है, आसपास के इलाके, यहाँ पर भी ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ है। ज़मीन लरज़ उठी है। मरी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। बता दें कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी ज़लज़ला रिपोर्ट हो रहा है। सवात, अटक, मर्दान में भी ज़लज़ला महसूस किया गया है, जबकि मरी और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले से ज़मीन लरज़ उठी है। और ये भी आपको बता दें कि इसकी शिद्दत क्या है, इस हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से बात करेंगे। सलमान, क्या बताया जा रहा है, कितनी शिद्दत का ज़लज़ला था? आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या महसूस किया आपने? जी बिल्कुल, हम ऑफिस में ही मौजूद थे जब ये ज़लज़ले के झटके आए हैं और काफ़ी तेज ये ज़लज़ला था। इसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा थी, जिससे पूरी बिल्डिंग जो है बोल ऑफिस की, वो आप कह सकते हैं कि लर्ज़ उठी। और जो इर्द गिर्द की बिल्डिंग्स के लोग हैं वो भी कलमा तैयबा का विर्द करते हुए अपनी इमारतों से, दफ्तरों से बाहर आ गए। उसके साथ ही पहले भी हमने देखा था कि सवात, मालाकंड, एबटाबाद, चारसद्दा, स्वाबी, टेक्सला और हसन इब्दाल जो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाके हैं, इसके अलावा एबटाबाद के अलावा अटक, कुंदियाँ, हसन अब्दाल के इलाकों में जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और स्वात के हवाले से ये इतलात सामने आई थी कि वहाँ पर जो ज़लज़ले के झटके, यकीनी तौर पर ये एक ही वेव है जिसने इस पूरे इलाके को, इस पूरे खित्ते को डिस्टर्ब किया है। ये इसका मरकज़ जो है इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी इलाकों में है। और इसकी जो शिद्दत है वो ये सामने आ रही है कि तकरीबन ये 4.3 की शिद्दत का ज़लज़ला था। और गालिबन इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई क्योंकि कम थी, शायद 88 किलोमीटर के करीब ये बताई जा रही है इसकी गहराई। और उसकी बदौलत ये ज़लज़ले के झटके काफ़ी ज़्यादा शदीद इस्लामाबाद के अंदर और गिरदोनवा के इलाकों के अंदर महसूस किए गए हैं। तो ये ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में था। और इसकी शिद्दत तकरीबन 4.4 जो रिक्टर स्केल है उसके ऊपर रिकॉर्ड की गई है अब तक की इतलात के मुताबिक। सही, अब तक की इतलात के मुताबिक ये रिकॉर्ड किया गया है। साथ साथ सलमान, अपना भी ख्याल रखिएगा, ये भी बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। सवात, अटक, मर्दान में कोई नुकसान की तो कोई खुदा न खास्ता अब तक इतला नहीं मिली? बिल्कुल, बहुत कबल अज़ वक्त होगा ये कहना नुकसान के हवाले से। अभी चंद मिनट ही हुए हैं ज़लज़ले को गुजरे हुए, और इसकी क्योंकि ज़ेरे ज़मीन गहराई कम थी, इसलिए खुदा न खास्ता जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, कच्चे मकानात हो सकते हैं या पहले से जो कमज़ोर इमारत हो सकती हैं, उनकी बदौलत उनको नुकसान पहुँच सकता है। लेकिन अभी तक जहाँ पर हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में या आसपास के इलाके में, यहाँ से तो ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई। ज़लज़ले का झटका जो है उसकी ड्यूरेशन कम थी, गहराई ज़्यादा थी और शिद्दत देखा जाए तो 4.3 थी या 4.4 थी। लेकिन क्योंकि गहराई ज़्यादा थी इसलिए ज़लज़ले के झटके काफ़ी ज़्यादा शदीद महसूस हुए। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक कहीं से किसी किस्म की कोई नुकसान की इत्तलात जो है वो नहीं पहुंची। और जो लेटेस्ट अपडेट की अगर मैं बात करूं तो ये कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में जो ज़लज़ले के झटके थे शायद वो 5 के आसपास थे। अभी तक महकमा मौसमियात ने इस हवाले से जो अपना ऑफिशियल वर्जन है या एग्जैक्ट फिगर जो है इस्लामाबाद के ज़लज़ले के हवाले से मैं बात करूं तो वो सामने नहीं आया। लेकिन जो स्वात की जो इतला है वो यही थी कि वहां पर 4.4 के करीब का ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। तो उसी शिद्दत की जो एक्सपेक्टेशन है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी के इलाके में भी की जा रही है, क्योंकि ये एक ही
बेल्ट है, एक ही जगह है जहाँ पे ये जिसने पूरे इस इलाके को, पूरे खत्ते को डिस्टर्ब किया है। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक किसी भी इलाके से, किसी भी मकाम से किसी किस्म के नुकसान की इत्तला जो है वो नहीं आई। और ये अगर मैं बात करूँ तो सलमान अवान साथ ही रहिएगा। सबात से अनवर शाम में ज्वाइन कर चुके हैं। अनवर, ये बताइएगा, ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में, सबात, अटक, मरतान में भी। ये बताइएगा कि ये मालूम हो सका है क्या शिद्दत थी और क्या किसी नुकसान की तो कोई इत्तला नहीं मौसूल हुई? जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर कबल स्वात और गिरदनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों में काफ़ी खौफ और हरास भी फैला है और लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दुकानों और घरों से बाहर निकल आए हैं। ताहम ज़लज़ले से फौरी तौर पर किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला तो मौसूल नहीं हुई। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई है और ज़लज़ले का मरकज़ ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का करीबी बॉर्डर था। जी हमें अपडेट कर रहे हैं अनवर शाह, साथ साथ सलमान अवान भी अपडेट कर रहे थे। आपको अपडेट करते चलें कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ एरियाज़ में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इससे कबल 31 तारीख को कराची में भी 4.7 शिद्दत का ज़लज़ला महसूस किया गया था और उसके बाद तकरीबन 2 हफ्ते बाद इस्लामाबाद में भी ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो महसूस किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले की शिद्दत 4.4 बताई जा रही है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से आपको बताएं कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में जो ज़लज़ला रिपोर्ट हुआ था उसकी शिद्दत के हवाले से बताया जा रहा है कि 5.5 रिकॉर्ड की गई है। यूजुअली अमूमी तौर पे देखा जाता है कि अगर 4 से ऊपर का ज़लज़ला हो तो आफ्टर शॉक्स भी रिपोर्ट होते हैं। यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सलमान अवान मौजूद हैं। सलमान, 5.5 गहराई भी कम बताई जा रही है, यकीनी तौर पर बहुत शिद्दत महसूस की गई होगी। कोई आफ्टर शॉक तो रिपोर्ट नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक कोई आफ्टर शॉक नहीं है। आफ्टर शॉक की तो कोई ऐसी इत्तला सामने नहीं आई, ना ही कोई झटका महसूस किया गया है। ये कुछ पहले भी, बल्कि चंद हफ्ते पहले भी गालिबन रमजान कम थी, इसी गहराई कम होने के बाइस आप कह सकते हैं कि ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई। ख़ासतौर पर जो हाई राइज बिल्डिंग हैं, बुलंद इमारतें हैं, वहाँ पर ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हो गई थी। और ज़लज़ला पैमा मरकज़ ने बताया है कि इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई सिर्फ 12 किलोमीटर थी और ये रावलपिंडी से शुमाल मगरिब में 60 किलोमीटर दूर था। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक किसी किस्म के जानी नुकसान की या माली नुकसान की इत्तला सामने नहीं आई। लेकिन जब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों की बात कर रहे थे कि वहाँ पर भी 4.4 का ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, शायद वहाँ पर ज़ेर ज़मीन गहराई ज़्यादा हो तो अगर गहराई कम हो तो उसके नतीजे में जो कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग्स हैं, उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन फिलहाल इस्लामाबाद में या रावलपिंडी से फिलहाल ऐसी कोई इत्तला नहीं सामने आई कि यहाँ पर ज़लज़ले से किसी किस्म का कोई नुकसान हुआ हो। लेकिन बहरहाल ये 5.5 की शिद्दत का ज़लज़ला था और उसकी ज़ेर ज़मीन गहराई। ठीक है, सलमान अवान हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, शहर इक़्तिदार में ही मौजूद हैं, बता रहे थे कि जो शिद्दत है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई है क्योंकि वजह ये बताई जा रही है कि सिर्फ 12 किलोमीटर की गहराई थी और 12 किलोमीटर देखा जाए तो कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल ज़ेर ज़मीन इसको कहा जा सकता है। यही वजह है कि शिद्दत ज़्यादा महसूस की गई है। 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला रिकॉर्ड हुआ है। बेल्ट रीजन अभी तक इसका सामने नहीं आया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चूँकि पेशावर और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले रिपोर्ट हुए हैं तो वही आसपास का रीजन हो सकता है जिसने शहर इक़्तिदार को भी इफेक्ट किया है और साथ साथ जो रावलपिंडी का एरिया है उसको भी मुतासर किया है। मियांवाली, मरी और गिरदनवाह में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सलमान अवान हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर से बात कर लेते हैं। सलमान, जिस तरह से बताया जा रहा है कि गहराई और जो शिद्दत बताई जा रही है, अभी तक इसका रीजन सामने आ सका है? किस बेल्ट पर रिपोर्ट हुआ है, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है ये? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद या रावलपिंडी के शुमाल मगरिब में ये ज़लज़ले का मरकज़ जो है वो मौजूद है। यहाँ से ज़लज़ला ओरिजिनेट हुआ है। इस्लामाबाद में खुद भी ज़लज़ले की इस्लामाबाद के आसपास से बड़ी फॉल्ट लाइंस जो हैं वो गुजरती हैं। ख़ासतौर पर बहुत अरसे पहले भी रिपोर्ट हुआ था कि जिस जगह पर इस्लामाबाद ब्लू एरिया या मारगला के पहाड़ हैं, यहाँ पर भी ज़लज़ले की फॉल्ट लाइन मौजूद है। इस वक्त जो ज़लज़ला आज जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:31 पर रिकॉर्ड किया गया है, ये रावलपिंडी के शुमाल मगरिब में 60 किलोमीटर दूर ये ज़लज़ले का मरकज़ मौजूद था और इसके
जो गहराई है, ज़ेर ज़मीन गहराई है, वो 12 किलोमीटर थी और उसकी रिक्टर स्केल के ऊपर शिद्दत 5.5 रिकॉर्ड की गई है। यही वजह है कि काफ़ी ज़्यादा इलाकों के अंदर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अटक के पार पंजाब के इलाके में अगर हम बात करें तो अटक, कुंदियाँ, मियाँ वाली तक ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, स्वात, हसन अब्दाल पंजाब की साइड के ऊपर और हरीपुर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर के इलाके टुडियाल से भी ज़लज़ले के जो झटके हैं उनकी इतलात सामने आई हैं। पंजाब में चकवाल, चनाब नगर, खुशाब, जौहराबाद और केपी के अंदर खानपुर, हजारा, हरीपुर और गिरदोनवा में भी ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए हैं और काफी ज्यादा शदीद ये सलमान, कहा जा सकता है कि केपी और पंजाब का एक बड़ा हिस्सा मुतासिर हुआ है इन झटकों से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों जो पंजाब के साथ साथ केपी और केपी के साथ साथ फेडरल टेरिटरी यानी कि इस्लामाबाद जो है, इन तमाम इलाकों के अंदर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और इसकी जैसे कि हम बात करें कि इसका जो मरकज़ है वो बिल्कुल ही रावलपिंडी के पास था, 60 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता, तो यहाँ पर ये ज़लज़ले का मरकज़ भी मौजूद था और इसकी ज़ेर ज़मीन गहराई भी काफ़ी कम थी। यही वजह है कि इसकी शिद्दत जो है वो काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई। बहरहाल ये एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी हम कोई प्रेडिक्शन आज तक की जो साइंस या टेक्नोलॉजी है उसमें हम करने के काबिल नहीं हो सके। अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे, अपनी अमान में रखे। अभी तक की जो इत्तलात है वो यही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। सलमान अमान अपडेट करते, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।